اور ہم آج کیا مضمون ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اونچی ساری بولے، کیا مضمون ہے؟ عالمگیر کفارہ۔ عالمگیر کفارہ۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 18ویں آیت، سب بلند آواز سے پڑھیے گا۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ سب لوگ تشریف رکھیں۔ آئیے بھائی کے ساتھ ایک صرف تھوڑا سا مصرع ہم گائیں گے زبور 22 کا۔ Hallelujah, praise, thank you. Thank you Jesus, thank you Lord. سب آنکھیں بند کریں اپنی اور اس مسئلہ کو رسیو کریں۔ Hallelujah. دی سب کریں گے بندے ساری دنیا میں، یاد یہوہ کی سب کریں گے بندے ساری دنیا میں، دل دینا رسول یار کے آگے بات خدا دے، دل دینا رسول یار ہاللویا۔ چرچ آواز بہت کم ہے، مل کے بولیے ہاللویا ہاللویا۔ آئیے خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے لیے زوردار تالیاں۔ مضمون ہے آج کا، ہم نے پچھلے 4 ویک روزوں کے بارے میں سیکھا ہے۔ روزہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، روزے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور کچھ ایسے روایتیں ہیں جو ہمیں مذہب سے کلام سے دور کر دیتی ہیں، اس کے بارے میں سیکھا۔ اور اب وقت ہے کہ ہم روزوں کے بعد آگے انٹونمنٹ یعنی کفارے کا ذکر آتا ہے، تو اب اگلے ہم گڈ فرائیڈے تک کفارے کو ہی سیکھیں گے۔ بہت سے خادمین نے کلمات لیے ہوئے ہیں جنہوں نے کلمے کے بارے میں گڈ فرائیڈے کو یہاں پہ میسج سنانے ہیں، ان کے لیے خاص سٹڈی ہے، وہ آج غور کیجئے گا۔ یہ 7 کلموں کا ذکر آج کے میسج میں شارٹلی آئے گا۔ کفارہ، کفر سے نکلا ہے۔ کفر کا مطلب ہے ڈھانپنا، کسی چیز کو کور کرنا، یعنی ٹیبل پہ اگر بہت سی چیزیں پڑی ہوں تو ان کو اوپر شیٹ ڈال دینا ہے، تو چیزیں تو نظر نہیں آتی مگر چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ٹیبل پہ یا کسی جگہ کو گند پڑا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، مہمان آگے اوپر شیٹ ڈال دو، کیا وہ گند صاف ہو جاتا ہے؟ وہ ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ کفارہ تھا جو پرانے عہد نامہ سے چلتا ہوا آ رہا تھا، یعنی یک سالہ بچڑے کے ساتھ ایک نر بچڑے کے ساتھ ہمیں 1 سال کا کفارہ یعنی چیزوں کا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ لیکن نئے عہد نامے میں آ کر وہ جو کفارہ تھا اس کا کانسیپٹ ہی بدل گیا، اور وہ اس نے کہا کہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں گیا تاکہ اس کے خون بہانے سے 1 سال کی نہیں بلکہ اپنی خلاصی ہو جائے۔ ہاللویا۔ اس نے گناہوں کو ڈھانپا نہیں ہے، اس نے گناہوں کو دھو ڈالا ہے۔ ہاللویا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ کفارے ڈھانپنے میں اور دھونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پہلے جب تک قربانیاں ہوتی تھی ڈھانپی جاتی تھی، وہ اپنے ایک وقت کے بعد پھر سے نمودار ہو جاتی تھی، لیکن اب جو کفارہ ادا کیا جا چکا ہوا ہے وہ عالمگیر کفارہ ہے۔ وہ کسی قوم کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی امت کے لیے نہیں ہے، کسی مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے، اونچی بولے، خدا نے دنیا سے ایسی
ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि इटर्नल अटॉनमेंट। ये हमेशा का अबदी कुफारा है जो किसी और ने नहीं, मेरे और आपके जिंदा यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। अभी हमने गाया ज़बूर 22 को ही आज हम देखेंगे। बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि ये साम ऑफ द क्रॉस है, यानी ये सलीब का ज़बूर है। यीशु मसीह के कुफारा अदा करने से हजारों साल पहले मुकद्दस दाऊद ने यीशु मसीह के सलीब की पिक्चर बयान कर दी है इसमें। ये कलमा है, चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि खुदा पहले कलमात में तो वो कहता है ऐ बाप इनको माफ कर, फिर दूसरे कलमे में भी कहता है कि तू आज ही मेरे साथ खुदा का किरदार अदा कर रहा है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और तीसरे कलमा में भी वो अपनी कुदरत को जाहिर करते हुए अपनी माँ को सुपुर्द करता है, मगर चौथे कलमे में वो बाप के साथ मुखातब नहीं हो रहा बल्कि खुदा कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने वो पेशन को पूरी कर दी जो इब्राहिम के ने कही थी कि वो बर्रा आप मुहैया करेगा जो जहान के गुनाहों को उठा ले देगा। और जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे तो यूहन्ना ने उनको कहा, लोगों को कहा, देखो ये है वो बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और वो बर्रा मेरे और आपके गुनाह लिए हुए वहां मौजूद था। और खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, इसलिए वहां पर पहली बार बाप बेटा और रूह कुदस के दरमियान जुदाई आती है। और वो बाप को बाप नहीं कहता बल्कि गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और छठी आयत में कहता है, हालेलुया हालेलुया प्रेज़, मैं तो कीड़ा हूं। कभी आपने देखा ये क्यों इस बात को कहा गया, मैं तो कीड़ा हूं? हम ये ज़बूर किसने पढ़ा है? ये ज़बूर कभी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगश्तरमा और लोगों में हकीर हूं। आज इस कीड़े के बारे में भी हम सीखेंगे। आखिर यीशु मसीह के बारे में दाऊद ने ये वर्ड जो बोला है, मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, यानी कि खुदा ने अपने आप को इंसान बनाया और यहाँ मेरे और आपके लिए उसने इंसान से भी ज्यादा नीचे हकीर अपने आप को बना लिया। कहते हैं आदमियों में भी मैं अंगश्तनुमा। अब अंगश्तनुमा जो है, कहते हैं वो सब मुझे देखते हैं, मेरा मस्का उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते हैं और सर हिला हिला कर कहते हैं। इमेजिन करें अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपका क्या रवैया होगा, मेरे साथ ऐसा हो तो क्या रवैया होगा। ये आपको आज तस्लीम करना पड़ेगा कि मेरी वजह से यीशु ने ये सारा सहा है। हालेलुया बोले, ये सब मेरे लिए हुआ है। अंगश्तनुमा का मतलब है इंसल्ट, उसकी इंसल्ट की गई, बेइज्जती की गई। और लोगों में हकीर यानी जिसकी हकारत की गई हो, जिसको धुतकारा गया हो, जिसको जलील किया गया। ये मुझे जलील किया जाना था, मगर उसने सारी जलालत अपने ऊपर ले ली। और 12वीं आयत में लिखा, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। अब यहाँ पे सांड, क्या आपने ये मूवी देखी है जब यीशु को सलीब दिया जा रहा है? क्या वहां कोई सांड नजर आए हैं? नहीं, यही तो बात है, हम स्टडी हमें करते हैं लेकिन बताया नहीं था। आज आपको बताने देता हूं, ये सांड कौन से, ये बुल नहीं है, ये बैल नहीं है, ये जानवर नहीं है, ये वो सांड है, बसन के जोरावर सांड, अपनी सीधा सीधे नतीजा कुव्वते, तारीख की फोर्सेस जो आज मुझे और आपको तंग करने की कोशिश कर रही है। ये वो सांड है। जब यीशु मसीह सलीब पर कुफारा दे रहे थे, आलमगीर कुफारा दे रहे थे, तो ये सारे सांड जो थे चारों तरफ से यीशु को घेरे हुए थे कि किसी तरह से इसका कुफारा नामुकम्मल कर दे। ये बदू है। और ज़बूर 15 में वो कहते 22 की 15 में कहता है, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानो खुश्क हो गई है।
मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई है। उसने कहा, सलीब पर कहा, मैं प्यासा हूं। 5वां कलमा उसने बोल दिया, मैं प्यासा हूं। और यहां पे देखें, ये पूरी पिक्चर दाऊद बयान कर रहा है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया और बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। दाऊद को नजर आ रहा था हजारों साल पहले कि जिसको मैं मुनज्जी मानता हूं, मेरे लिए अपने हाथ और पांव को छुड़वाएगा और सलीब पर मेरे लिए जान कुर्बान करेगा। दाऊद को खुदा दिखा रहा है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं कि ऐसा हुआ नहीं था। ये सारा कुछ एक एक लाइन यीशु के कफारे को दाऊद बयान कर रहा है। मैं प्यासा हूं। सलीब पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। डिहाइड्रेशन हो चुकी थी। जो मेडिकल से वो जानते हैं कि जब इंसान में खून के साथ पानी की कमी हो जाती है तो फिर चलना फिरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वहां वो मेडिकली भी कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, और रूहानी तौर पर भी कह रहा है, मुझे मेरी रूहों की प्यास है, जिनकी नथनों में मैंने अपना रूह फूंका है, जिनको जंगली सांड मुझसे दूर लेकर जा रहे हैं, जिनके लिए मैं आलमगीर को फराद कर रहा हूं, इनकी रूहों का मैं प्यासा हूं। तब भी प्यासा था, आज भी वो थर्स्टी है, आज भी वो प्यासा है। और 20वीं आयत में लिखा है, उसकी सब हड्डियां को महफूज रखता है। ज़बूर 34 की 20वीं आयत देखें तो यहाँ लिखा है, वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उसमें एक भी तोड़ी नहीं जाती। और ऐसा ही हुआ। आप जानते हैं, जब कुफारा दिया जाता था सलीब पे, तो किसी को जान निकालने के लिए उसकी हड्डियां तोड़ी जाती थी, क्योंकि सलीब पर घंटों घंटे जान निकलती नहीं थी। तो फिर एंड में उसको हड्डियां तोड़कर उसकी जान निकाली जाती थी। वो पहले डाकू के पास गए, उसकी हड्डियां तोड़ दी, इधर से दूसरे डाकू की हड्डियां तोड़ी, लेकिन उनकी नौबत ना आई, क्योंकि मेरे और आपके मुन्नजी की कोई जान ले नहीं सकता था। उसने खुद ही वहां पे कह दिया, सलीब पर कलमा, एलोही एलोही, उसने कह दिया, चिल्लाकर कहा कि मैं बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। किसी की जरूरत नहीं उसकी हड्डी को। और खरूज में भी लिखा है, फसा के बर्रा की कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जो फसा के बर्रा की क्वालिफिकेशन होती है, कोई उसके अगेंस्ट यीशु को बना यहूदी एंटी क्राइस्ट आज कह सकते थे कि वो तो इस तरह से कुर्बान नहीं हुआ। उसने पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन वो अदा की जो एक फसा के बर्रे की होती है। क्यों मसीह की कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई, आप बता सकते हैं? जो मेडिकल साइंस से हैं उनको पता है कि इंसान की हड्डी के अंदर खून बनता है। जब हड्डी ब्रेक हो जाती है तो वहां से खून बनना बंद हो जाता है, जब तक वो दोबारा जुड़ नहीं जाती। इसलिए फौरी तौर पे ऑपरेशन किया जाता है कि वहां से रवानगी गूदा बनता है, ब्लड सेल्स बनते हैं। और यीशु की हड्डी इसलिए नहीं तोड़ी जाती थी क्योंकि खुदा का एक आलमगीर वादा है कि उसके बदन का खून जो है उसमें कोई ब्रेकेज नहीं आएगी। वो तब भी बहता था, आज भी बह रहा है और इटर्नल लाइफ तक बहता रहेगा। उसके खून में कभी नहीं आएगी। वो आज भी गुनाह के लिए बहता है, इसलिए उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, क्योंकि हड्डी जहां से टूटती है वहां से खून बनना बंद हो जाता है। यीशु जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाना वाला कर रहा है, इसकी भी कोई हड्डी नहीं तोड़ेगी। और फिर हम ज़बूर 22 के 18वीं आयत में कहते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, वो मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं, जिनके लिए वो सलीब पर आलमगीर को फारा दे रहा है, उसी की एक्सेसरीज को, उसी के ड्रेसेस पर वो लालच दिखा रहे हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जो चर्च, बहुत से चर्च आज भी उसका नाम लेकर लालच से खिदमत में फंसे हुए हैं, लालच बांट रहे हैं, आज भी कुरा डाल रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए ये, गुरु को ढूंढ रहे हैं, यीशु का नाम लेकर बेच रहे हैं यीशु को। तब भी लालची लोग थे, आज भी लालची लोग हैं। तब भी वो उनके लहू बहाया रहा था, आज भी वो लहू बहा रहा है। तब भी उसकी सलीब से शिफा बह रही थी, आज भी उसकी सलीब से शिफाएं बह रही है। इंसान के अंदर लालच है,
यीशु उनके गुनाहों के लिए कुर्बान हो रहा है, आलम की कुफारा दे रहा है, मगर वही इंसान उसके कपड़ों पर कुरा डाल रहे हैं, लालच कर रहे, संगदिली देखे, तारीकी देखे इंसान की। और यूहन्ना 3:16 में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। उन्हें आज का मैसेज मेरे लिए, और इस बुक की आखिरी आयत देखें, लिखे वो आएंगे उसकी, यानी खत्म हो गया सब कुछ, पूरा कर दिया। ये वर्ड पूरी बाइबल में 2 बार इस्तेमाल हुआ है। पहली बात तवारीख में, हुराम उसने सुलेमान के कहने पर जब खुदा के घर का सारा काम किया तो वहां पे उसने ये वर्ड यूज किया, असा। सुलेमान नबी से कहा असा, यानी जो कुछ तूने मुझे दिया था मैंने वो डन कर दिया है। उसके बाद ये यीशु ने सलीब पर ये वर्ड यूज किया और सब कुछ डन करने के बाद अपने बाप से कहा, ऐ बाप, क्या हुआ? ऊंची सारी बोले, क्या हुआ? नो मोर सैक्रिफिकेशन, अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ यीशु ने कुर्बान होने पर मेरे और आपके लिए हमें बहाल कर दिया। अब वर्ड है कीड़ा, मैं तो कीड़ा हूं। अजीब सा वर्ड नहीं लगता कोई यीशु के बारे में ऐसा कहे? लगता कि नहीं लगता? आज मैं बताना चाहता हूं ये वर्ड कीड़ा क्यों यूज किया गया। इब्रानी जुबान में जब मैं स्टडी कर रहा था तो कीड़े का वहां पे आया वर्ड रेमा, रीमा नहीं, पामे उठ तुझे रीमा वो कीड़ा नहीं, रेमा, वर्ड रेमा आया है। अब इसका मतलब है सुर्ख अगवानी, और जब इसको यूनानी जुबान में देखा तो वहां पे इसका मतलब है तौलात। क्या मतलब है? मेरे साथ रही, क्या मतलब है? अब जब इसको देखा तो ये इंसेक्ट नहीं आता, इसका मतलब कीड़ा नहीं है। गौर कीजिए, चूंकि ट्रांसलेशन में इसका वर्ड कीड़ा यूज किया गया, ये तौलात का मतलब कीड़ा नहीं है बल्कि वर्म है। क्या है? वर्म जानते हैं? वर्म क्या होता है, कीड़ा क्या होता है, किसी को पता है? जी डॉक्टर साहब, आपको पता होगा जी, खाने वाला कीड़ा। हाँ, लेकिन वर्म जो है, शुक्रिया, बैठे मैं आपको बताता चलूंगा। कीड़ा वो होता है जो जनरेशनल पैदा होके जमीन पर काम कर रहा होता है, लेकिन वर्म वो होता है जो उस कीड़े को पैदा करता है। अब देखिए, इंसेक्ट वर्सेस वर्म, जब तक किसी की हिस्ट्री ना बताओ आपको मैसेज की समझ नहीं आएगी। ऐसा है कि नहीं? अब कीड़ा क्यों कहा गया? इंसेक्ट क्या होता है? ये है इंसेक्ट, कोई भी लगा सकते हैं हम, यानी कीड़ा जो जमीन पर चलता फिरता है। इसको उड़ाओ तो उड़ जाएगा, इसको भगाओ तो भाग जाएगा, ये अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन वर्म मर्जी नहीं करता। वर्म जो है, इसको इंग्लिश में स्कारलेट भी कहा गया है, और ये वो कीड़ा जो कीड़ों को, ये वो वर्म है जो जिससे जिंदगी जन्म लेती है, और ये दरख्तों के साथ चिपटे होते हैं। इस तरह से ये सुर्ख अरगवानी दरख्तों के साथ चिपट जाता है, ब्लड इसके अंदर भरा होता है। और दाऊद कहता है वो मुझे जन्म देने के लिए खुद दरख्त के साथ चिपट गया, खुद सलीब के साथ चिपट गया, खून से भरा हुआ था वो। हालेलुया। और फिर काम ये क्या करता है? इसका एक और बड़ा निराला काम है। जब ये वर्म कीड़े को जन्म देता है तो खुद मर जाता है। जब ये कीड़े को जन्म देता है तो क्या करता है? खुद कुर्बान हो जाता है, ये फट जाता है, इसके अंदर से ब्लड की धारा निकलती है, और उस धारा के अंदर से वो जिंदगी जन्म लेती है। और यीशु ने क्या किया? जब वो सलीब दरख्त के साथ लगा हुआ था, उसकी पसली में जब नेजा मारा गया, नेजा ने फाड़ दिया ब्लड और पानी को, तो नीचे एक ऐसा कीड़ा बैठा हुआ था जो बेजान हो चुका था। वो सूबेदार जो यीशु से दूर था, वो ऐसे बैठ के यीशु की तरफ देख रहा है, ब्लड का पानी उसके ऊपर, ब्लड और पानी यीशु का उसके ऊपर पड़ा, तो उसने कहा यकीनन ये खुदा का बेटा है। क्या हुआ? वो खुद तो मर गया, मगर उसके ब्लड से एक चर्च जन्म ले गया। हालेलुया। वो चर्च बन गया। जो गुनाहगार था, जो लूटने वाला था, मारने वाला, जालिम था, वो यीशु के लिए चर्च बन गया। ये कीड़ा वर्म जो है,
ये खुद तो मर जाता है मगर अपने अंदर से जिंदगी को पैदा करता है। यीशु भी खुद तो मर गया और अपने अंदर से उसने एक चर्च को पैदा कर दिया। हालेलुया। और फिर देखिए ये हुआ यीशु का, वो खुद तो उसकी तरह, उस वर्म की तरह चिपक गया, लेकिन उसके अंदर से बेहतरीन चर्च बना। और वो जो सूबेदार था उस सारे एरिया का, वो बहुत बड़ा बिशप बना था जिसने यीशु को झेला था। और फिर क्या होता है इस वर्म के साथ, होता क्या है, आज थोड़ी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। वर्म के साथ होता क्या है, जब वो वर्म कीड़े को जन्म दे देता है, चिपका होता है, तो उससे एक ग्लू पैदा होती है। ये दरख्तों में आपने देखी होगी, वैक्स पैदा होती है, देखिए कि नहीं, ये एक वैक्स पैदा होती है दरख्तों के अंदर। ये उस कीड़े को निकाल चुका होता है लेकिन खुद 3 दिन तक चिपका रहता है। यीशु ने उस जिंदगी को अपने अंदर से निकाल दिया मगर खुद जमीन पर 3 दिन रहा, जमीन के अंदर। हालेलुया। और फिर क्या होता है, 3 दिनों तक इसको कोई भी अगर ना वहां से हटाए, ना उसको निकाले, ना उसको छेदे, तो ये अच्छा, ये मैं इसको जब रिसर्च कर रहा था तो ये जो चीज है वैक्स, इससे एक मेडिसिन तैयार होती है और ये कॉर्डी वैक्स के नाम से मेडिसिन है। और ये कार्ड यानी दिल को ठीक करने की होती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू दिल को जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। सब बोले आज का मैसेज में ये है। मेडिसिन का भी काम साथ साथ होता है। अच्छा जी, उसके बाद 3 दिन तक उस वैक्स को कोई छेड़े ना, वो वैक्स चिपकी रहे, तो रेड और अगवानी जो है वो वाइट में तब्दील हो जाता है, प्योर वाइट में तब्दील हो जाता है। उसके अंदर से वाइट ब्लड निकलना शुरू होता है, वाइट ब्लड सेल्स। और यीशु ने क्या कहा था, पौलुस रसूल ने सलीब का खास पैगाम दिया। यशायाह ने पहला बाब 18वीं आयत में उसने कहा, अब खुदा फरमाता है, आओ हम हुज्जत करें, अगर चाहे तुम्हारे गुनाह किरमजी यानी रेड क्यों ना हो, तुम्हारे गुनाह अलूदा हो तुम, तो वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद और अरमानी हो तो भी ऊन की मानद उजले हो जाएंगे, क्योंकि यीशु जो खुद खून था वो मेरे और आपके गुनाहों को धोकर वाइट कर देता है 3 दिन बाद। हालेलुया। ये आलमगीर गुफारा है। दुनिया में चाहे भाई गारत है, रंग छड़े आई, मैनू रंग छड़े आई, वो खुद तो अपने लहू में धुल गया, लटपट हो गया, मगर मेरे गुनाहों को धो के उसने मुझे तर और ताजा कर दिया। हालेलुया। और ये खास मैसेज है। पौलुस रसूल ने इसलिए तो कहा, ये बेवकूफ लोग इसको कीड़ा समझते हैं, बेवकूफ लोग ऐसे ऐसे बयाना देते हैं, लो जी यीशु नुते दाऊद ने कीड़ा कह दिता, ये केहो जी बाइबल है, ये केहो जी निजात है, खुदा ने मार दिता। तो पौलुस आगे क्या कहता है, कहता है क्योंकि सलीब का पैगाम ये जो भी सुनाया जा रहा है, और ये हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी हो सकती है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक पावर ऑफ गॉड, ये खुदा की कुदरत है। कहां से वो खुद को कहां से कहां लेकर आया और कहां से जिंदगी को उसने उठा दिया। दिस इज द इटर्नल अडॉर्नमेंट। ये आलमगीर गफारा है, और इसमें कोई मजहब नहीं है, इसमें कोई तबका नहीं है, डॉक्टर बिशप पादरी एल्डर नहीं है। लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया, कितनों ने, जितनों ने उसे कबूल किया उसने सबके गुनाह माफ करके उनको अपने फर्जंद बना दिया। हालेलुया। और मसीह की सलीब की कुदरत, ये जो सलीब है ना, ये बहुत कुछ करती है। ये क्या करती है, गुनाह की ताकत से रिहाई देती है। ये क्या करती है, गुनाह की मौजूदगी से भी रिहाई दे देती है। जितना इसके करीब आएंगे गुनाह की जिंदगी से उतना दूर होता चला जाए। हालेलुया। और जब यही यीशु दोबारा आएगा अपने जहो जलाल के साथ, तो वो तमाम खूनखरीदों को, मुकद्दसों को, ईमानदारों को गुनाह की मौजूदगी से रिहाई दिलाएगा, क्योंकि ये सलीब पुकार पुकार कर गवाही देगी कि यही यीशु
हालेलुया। गुनाह की पावर, ये हमें सलीब जो है गुनाह की पावर की पेनल्टी से हमें आजाद करती है। ये हमें फ्रीडम ऑफ पावर ऑफ सिन से, गुनाह आज छाया हुआ है, ये हमें उससे आजाद करती है। जब हम निजात पा जाते हैं तो यही सलीब हमें जिंदगी देती है। उस डाकू ने बहुत से गुनाह किए, मगर पहला ही कलमा जब यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये क्या करता है, तो फौरन उसने सलीब के करीब आकर देखे, जो जानी था, जो डाकू था, जो मकार था, जिसको सजाए मौत डिक्लेयर हो चुकी थी, जिसको कोई नहीं बचा सकता था, कैसे वो सलीब पर आया, कैसे सलीब के पास आया, कैसे उसने खुदा की कुदरत को देखा, कैसे उसने देखा कि उसको छेद रहा है, ये तो उनको भी माफ कर रहा है। उसने कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी। तो यीशु को नहीं इजाजत लेने की बड़ी जरूरत किसी ने। यीशु ने कहा, यू आर राइट नाउ, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। दिस इज द पावर ऑफ क्रॉस। ये है यीशु की पावर जो सलीब के जरिए से हम तक पहुंची है। आज आपने जितने भी अगर कोई गुनाह किए हैं, अगर कोई बीमारियां हैं, अगर कोई आपके अंदर प्रॉब्लम है, अगर आप डरते हैं, तो याद रखिए यही मौका है, सलीब के पास आए और गुनाहों का इकरार करें, उसे कहें, जब तू अपनी बादशाही में आए, वो तो आ चुका है, मुझे भी याद करना। वो नहीं कहेगा 7 बकरे दे, 7 बोताई, 7 इतवार आई, नेवर। आज ही आपके पास मौका, बोले सब आज ही, एक दूसरे कहे आज ही, तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। You are children। मैं एक बोनियम का सॉन्ग सुन रहा था, इंग्लिश सिंगर है, बड़ा पुराना, शायद कोई इसे जानता हो, 70s में बना, आज सब भी जानते हैं। वो सॉन्ग है, We are children of the paradise, we are children of the paradise। ये हम सब बच्चे जो हैं, ये यीशु की बादशाही के बारे से, हालेलुया। और देखें कौन लोग कह रहे हैं, और ये मेरे और आपके खुदा की पावर है कि मैं और आप उसके बच्चे हैं और उसकी बादशाही के वारिस हैं, हालेलुया। और हमारे गुनाह धुल जाते हैं और उसकी फितरत है, और इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगले संडे, ठीक है। ये भी खत्म नहीं हुआ। अब मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ आखिरी बात। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, मैंने कहा था मैं इसको जरूर बताऊंगा। ये जोरावर सांड जो है, ये देखें, जब सलीब पर यीशु थे तो ये अपनी सी कूदते यीशु के साथ थी। ये यीशु को वहां से कुफारे से पहले मौत देना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपके खिलाफ भी बहुत खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं आज एक राज की बात बता रहा हूँ। मेरी फैमिली को पता है, लेकिन इस राज का भी इन्होंने पता। मैं बता रहा हूँ, मैं जब इस्लामाबाद में रहता था तो हमारे घर में ना इटालियन अंगूरों की बेल थी, बहुत ज्यादा अंगूर लगते थे। बेंसमीना को पता है, और अंगूरों से वो लद जाती थी बेल, कोई नहीं जाता था उसके पास। वो थे इन्हें पूर्ण होते हैं, कोई नहीं जाता, सारे डरते हैं अंगूर इतने अच्छा। मैं एक दिन की कीता, हाथ में कपड़ा बांध के भून फड़िया पिछों का डंके छड़े, जिन्हें भूण होते हैं ना, मैं कपड़ा फाड़ कर डंके ही देना, तो भूडा च फड़ लेना, नाल अंगूर खाई जाना। मेरे अंकल जो कैनेडा थे, वो कहते थे क्या हुआ तेन भूण कुछ नहीं कहते, मैं क्या मेरे मेरे हाथ ने, तो साहब मैं अंगूर खाई जाता था। तो ये राज की बात है, वो भूण भी आंदा ही, लेकिन अपनी तुम पिछले लगाए वो दसदा नहीं कि तार डंगे ते मेरे ना कटते आज, मैं उनके काम का नहीं, मैं मजे से अंगूर खाता था, एंजॉय करता। तो आज भी ऐसी बात ही है, अपनी साता जरूर है, लेकिन उसको पता नहीं है ये जिस यीशु के मानने वाले हैं और सलीब देते हमने मेरे सारे डंग काटते थे, हालेलुया। मां तेरा डंग कह गया, कमर तेरी बदल आ गई, हालेलुया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਬ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, कोई ना ब्लड प्रेशर रहेगा, कोई ब्लड शुगर नहीं रहेगा, और डॉक्टर अगर टेबल डेथ भी डिक्लेयर करेंगे और यीशु ने खून से शफाए और पार करा करेगा, हालेलुया। कोई अपनी तस्वीर आपको नहीं डरा सकती, क्योंकि वो एक ढंके निकल जाएंगे। खुदा उल्लास के कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत है। डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं?